गवर्नमेंट कॉलेज राजसमंद से मैं प्रेम सिंह चौहान बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी पेपर थर्ड अप्लाइड जूलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आज हम लाइफ हिस्ट्री ऑफ बॉम्बिक्स मोराई के बारे में अध्ययन करेंगे। लाइफ हिस्ट्री ऑफ मलबेरी सिल्क वर्म। मलबेरी सिल्क वर्म को बॉम्बिक्स मोराई कहा जाता है। The adult Bombyx morai is about 2.5 centimeter in length and pale creamy white in color. जो वयस्क बॉम्बिक्स मोराई होता है ये 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और पीले क्रीमी सफेद रंग का होता है। ये बॉम्बिक्स मोराई की लाइफ साइकिल का डायग्राम है। दिस इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ बॉम्बिक्स मोराई which represents adult male, adult female. These are the eggs. Eggs develop into mature caterpillar, which consists of a head, thorax, and abdomen. Thorax with two thoracic legs, and abdomen with 5 abdominal legs, along with pseudo legs. A dorsal horn is present, and spiracles on the abdominal segments are also present. This is mature caterpillar which secretes cocoon around us. Cocoon cut and open. Chrysalis came out from this cocoon which becomes adult male and female. So the life cycle of the Bombyx morai consists of adult egg, mature caterpillar, cocoon, and then adult. Heavy body and feebly wings. Flight is not possible by female moth. This moth is unisexual in nature and does not feed during its very short life period of 2 and 3 days. इनका शरीर भारी होता है, फीबल विंग्स होते हैं, मादा वयस्क उड़ नहीं सकता है, मादा मौत नहीं उड़ सकता है। मौत दोनों नर और मादा यूनिसेक्सुअल होते हैं, अलग अलग होते हैं और 2 से 3 दिन की बहुत छोटी जो है जिंदगी व्यतीत करते हैं और ये कुछ नहीं खाते हैं। नाउ adult phase reproduces and egg is fertilization. The fertilization is internal preceded by the copulation. मैथुन के पश्चात इनमें निषेचन होता है. Just after emergence, male moth copulate with female for about 2 and 3 hours, and if not separated, they may die after few hours of copulating with female. कुकुन से बाहर निकलते ही नर जो है मौत मादा के साथ मैथुन की क्रिया में भाग लेता है। मैथुन की क्रिया 2 से 3 घंटे तक चलती है और यदि यह अलग नहीं हो पाता है तो कुछ घंटों के पश्चात कॉपुलेशन के पश्चात मर जाता है। उसके बाद इसमें आती है एग लेइंग, अंडे देने की प्रक्रिया। Just after copulation, female starts egg laying, which is completed in 1 to 24 hours. One moth lays 400 to 500 eggs depending upon the climatic condition and the supply of the food material to the caterpillar from which the female moth is obtained.
The egg laying is always in the form of cluster and covered with the gelatinous secretion of the female moth, which helps them in proper attachment. मैथुन के तुरंत बाद मादा अंडे देना प्रारंभ करती है, जो 1 से 24 घंटे की अवधि तक अंडे देती है। एक मोथ 400 से 500 अंडे देती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहां की पर्यावरणीय स्थितियां और उसे प्राप्त होने वाली भोजन की पदार्थ, कैटरपिलर को प्राप्त होने वाला भोजन का पदार्थ किस प्रकार का है, किस प्रकार का भोजन का पदार्थ उस मादा को प्राप्त हुआ है जो अंडे दे रही है। The egg laying is always in the form of cluster. अंडे क्लस्टर में दिए जाते हैं and covered with the gelatinous secretion of the female. मादा के जिलेटिनस स्त्रावण के द्वारा आवृत रहते हैं, जो इसे प्रॉपर संलग्न में सहायता करता है। Eggs laid by the female moth are rounded and white in color. The weight of the newly laid 2000 eggs come to the 1 gram. With the increase in the time after laying, eggs becomes darker and darker day by day. Two types of eggs are generally found, diapause type and non-diapause type. The diapause type of eggs are laid by the silkworm inhabiting in the temperate region, whereas silkworm belonging to the subtropical region like the India lay non-diapause type of egg. During diapause, all the vital activities of the egg ceases. मादा मोथ के द्वारा दिए जाने वाले अंडे गोल आकार और सफेद रंग के होते हैं। नए दिए गए 2000 अंडों का भार 1 ग्राम होता है। जो जो समय व्यतीत होता है, अंडे गहरे से गहरे दिन प्रतिदिन होते जाते हैं। अंडे 2 प्रकार के होते हैं, डायापोज प्रकार के और नॉन डायापोज प्रकार के। टेम्परेट क्षेत्रों में रहने वाले सिल्कवॉर्म के द्वारा डायापोज प्रकार के अंडे दिए जाते हैं, जबकि वे सिल्कवॉर्म जो उष्ण सब ट्रॉपिकल रीजन्स जैसे कि भारत में दिए जाते हैं, वो नॉन डायापोज प्रकार के होते हैं। डायापोज प्रकार के अंडों में सभी प्रकार की जैविक क्रियाएं बंद हो जाती है। हैचिंग, द एग्स आफ्टर 10 days of the incubation hatch into a larva called as caterpillar. Hatching is the most important phase of the silk moth's life. After hatching, caterpillars need continuous supply of the food because they are voracious feeders. If proper supply of mulberry leaf is not possible, the development of the caterpillar would not be proper course. Sometimes, due to lack of food material, young caterpillars die, causing great loss to the sericulture industry. It is recorded that in univolatile race, hatching of the eggs takes 1 month after laying. Hatching 10 दिनों के इंक्यूबेशन के पश्चात अंडों में से लार्वा निकलता है, जिसे कैटरपिलर कहा जाता है। हैचिंग सिल्क मोथ्स के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण प्रावस्था होती है। हैचिंग के पश्चात कैटरपिलर को नियमित रूप से भोजन की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह भुक्कड़ स्वभाव का होता है। यदि उचित सहतूत के पत्तों की आपूर्ति
संभव नहीं होती है तो कैटरपिलर का डेवलपमेंट उचित प्रकार से नहीं हो पाता है। कभी कभी भोज्य पदार्थों की कमी के कारण शिशु कैटरपिलर्स मर जाते हैं, जिसके कारण रेशम के कीट की उद्योग को भारी क्षति होती है। यूनिवोलेटाइन रेस की हैचिंग एक महीने के बाद होती है। कैटरपिलर The newly hatched caterpillar is about 0.3 centimeter in length and is pale yellowish white in color. The caterpillar are provided with well-developed mandibulate type of mouth parts adapted to feed easily on the mulberry leaves. The caterpillar is 12 segmented and the abdominal region has 10 segments having 5 pairs of pseudo-legs, and it is also provided with a small dorsal horn on the anal segment. Because of its being very much tender, the first instar larva can be fed only on very soft leaves of the mulberry plants. As they are voracious feeders, they grow rapidly, which is marked by 4 molting. After first, second, third, and fourth molting, caterpillars get changed into the second, third, fourth, and fifth instar respectively. It takes about 21 to 25 days after hatching. The full-grown caterpillar is 7.5 centimeter in length. It develops salivary glands, stops feeding, and undergoes pupation. The time taken for the full growth of the caterpillar from the young to the well-grown stage varies with the regards to the temperature, humidity, food supply, and the type of the race. Weight of the full-grown caterpillar varies from 4 to 6 grams. Now the caterpillar जो अभी अभी निकला है 0.3 सेंटीमीटर लंबाई का, हल्के पीले और सफेद रंग का होता है। कैटरपिलर में मैंडिबुलेट प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं जो सहतूत की पत्तियों को खाने के लिए अनुकूलित होते हैं। कैटरपिलर में 12 खंड पाए जाते हैं, जिसके उदर में 10 खंड होते हैं। इन 10 खंडों में 5 जोड़ी सूडो लेग्स पाए जाते हैं। अंतिम एब्डोमिनल सेगमेंट, जिसे एनल सेगमेंट भी कहता है, उसमें एक छोटा सा पृष्ठीय श्रृंग पाया जाता है, स्मॉल डोर्सल हॉर्न। ये बहुत वेरी मच टेंडर होने के कारण इसका जो फर्स्ट इंस्टार लार्वा है वे केवल सहतूत की कोमल पत्तियों को खाता है, क्योंकि यह अत्यंत भुक्कड़ स्वभाव का होता है और वह तीव्रता से वृद्धि करता है और 4 बार इसमें निर्मोचन होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 बार कैटरपिलर के निर्मोचन के पश्चात यह फर्स्ट बार निर्मोचन हुआ तो सेकंड बार हुआ तो थर्ड बार हुआ तो फोर्थ और फोर्थ बार हुआ तो फिफ्थ। यह सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इंस्टार्स कहलाते हैं में परिवर्तित होता है। फिफ्थ इंस्टार बनने के लिए इसको 21 से 25 दिन का समय लगता है। पूर्ण रूप से परिपक्व कैटरपिलर 7.5 सेंटीमीटर की लंबाई का होता है, जिसमें लार ग्रंथियां परिवर्धित हो जाती है। अब यह खाना बंद कर देता है और प्यूपा निर्माण की क्रिया के अंदर चला जाता है।
पूर्ण रूप से वृद्धि प्राप्त किए हुए कैटरपिलर को यंग अवस्था में वेल ग्रोन स्टेज प्राप्त करने के लिए उस वातावरण के तापक्रम, आर्द्रता, भोजन की आपूर्ति और उस जाति के प्रकार पर निर्भर करता है। पूर्ण वृद्धि प्राप्त कैटरपिलर 4 से 6 ग्राम का होता है जो प्यूपा निर्माण करता है। Now it comes to the pupa. The caterpillar stops feeding and moves towards the corner among the leaves and secretes a sticky fluid through the sickle glands. The secreted fluid comes out through spinneret, a narrow pore situated on the hypopharynx, and takes the form of long fine thread of the silk which hardens on exposure to the air and wrapped around the body of the caterpillar in the form of covering called as cocoon. Pupa. कैटरपिलर अब खाना बंद कर देता है, एक कोने या सिरे में कोने में चला जाता है, पत्तियों के कोने में चला जाता है और चिपचिपा द्रव पदार्थ का स्त्रावण सिल्क ग्लैंड से करता है। यह स्त्रावित किए जाने वाला द्रव पदार्थ स्पिनरेट के द्वारा बाहर निकलता है। स्पिनरेट एक सकरा छिद्र होता है जो कि हाइपोफैरिंक्स पर स्थित होता है। यह स्पिनरेट से स्त्रावी पदार्थ लंबे धागे के सिल्क के लंबे धागे के रूप में निकलता है जो हवा के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है और कैटरपिलर के शरीर के चारों ओर लिपटता जाता है और इस प्रकार लिपट करके कुकून का निर्माण करता है। नाउ कुकून is the white colored bed of the pupa whose outer threads are irregular while the inner threads are regular. Length of continuous thread secreted by the caterpillar for the formation of cocoon is about 1000 to 12 meters, which requires 3 days to complete. The threads is wound round the cocoon in concentric manner. The binding of the threads around the cocoon is very interesting and quick-going phenomenon achieved by the constant round motion of the head of the caterpillar from one side to the other at the rate of 65 times per minute. Now the silkworm pupa is covered within a thick, oval, white and yellow silken cocoon. It is estimated from the data obtained by the practical application that 1 pound of milk can be obtained from 2500 cocoons. The weight of one cocoon is about 1.8 to 2.2 grams and the weight of the cocoon cell only is 0.45 gram. The size of thread is 2.0 to 2.8 denier. The pupal period lasts for 10 to 12 days and the pupae cut the cocoons and emerge out into the adult moth. कुकुन जो होता है वह सफेद रंग का प्यूपा का बिस्तर होता है जिसके बाहरी धागे अनियमित तथा अंदर के धागे नियमित प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। कैटरपिलर के द्वारा स्त्रावित किए जाने वाले सतत धागे की जो लंबाई होती है वो 1000 से 1200 मीटर तक होती है। इस धागे के स्त्रावण के लिए 3 दिन लगते हैं। कुकून के चारों ओर लिपटे हुए धागा सकेंद्रित रूप से लिपटा होता है। कुकून के चारों ओर बंधा हुआ धागा जो है दिलचस्प और क्विक गोइंग लक्षण होता है जो सिर के एक निश्चित मोशन में घुमाने के द्वारा संपन्न किया जाता है।
सिर को घुमाने की जो दर होती है 65 टाइम्स पर मिनट होती है। इसके पश्चात सिल्क वॉर्म का जो प्यूपा होता है मोटे गोल सफेद येलो सिल्कन कोकून के द्वारा घिरा हुआ होता है। एक डाटा के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि 1 पाउंड सिल्क को प्राप्त करने के लिए 2500 कुकुन्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक कुकुन का जो वजन है वो 1.8 से 2.2 ग्राम होता है और कुकुन के आवरण यानी केवल रेशम का जो वजन होता है वे 0.45 ग्राम होता है। धागे की साइज जो है 2 से लेकर 2.8 डेनियर होती है। प्यूपल पीरियड जो होता है वो 10 से 12 दिन तक चलता है और प्यूपा इसके पश्चात कुकुन को काट करके बाहर वयस्क मौत के रूप में निकलता है। इमर्जेंस ऑफ द इमेगो ड्यू टू द active metamorphic changes during the pupal period. The abdominal pseudo-legs disappear and 2 pairs of the wings develop the silkworm within the cocoon. It secretes an alkaline fluid to moisten its one of the ends. As a result of this, the moistened end becomes soft, where the threads are cut open, hydrolyzed by the silkworm. Finally, a hole is formed through which a feeble adult moth squeezes out of the cocoon. इमेगो का बाहर निकलना सक्रिय कायांत्रित परिवर्तनों के पश्चात प्यूपा में से मोथ बाहर निकलता है। इस समय इसके उदर में पाए जाने वाले सूडोलैक कूटपाद या आभासी पाद विलुप्त हो जाते हैं और इसमें 2 जोड़ी पंख परिवर्तित हो जाते हैं। कुकून के भीतर ही सिल्कवॉर्म एक क्षारीय द्रव का स्त्रावण करता है जो कुकून के एक सिरे को नम या ढीला कर देता है। इसके पश्चात दागोमर को हाइड्रोलाइज करके एक छोटा छेद बना देता है। इस छोटे छेद में से वयस्क मौत जो है बाहर की ओर स्क्वीज आउट हो जाता है कुकुन से। इस प्रकार रेशम के कीड़े या सिल्कवॉर्म बॉम्बिक्स मोराई की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। ये बॉम्बिक्स मोराई की लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल में एडल्ट मेल, एडल्ट फीमेल undergoes copulation, produces fertilized eggs. From the eggs, it develops into the mature caterpillar. Caterpillar converted or secreted cocoons around it and it becomes a cocoon. Under the cocoon, it loses its pseudo-abdominal legs and develop wings. After the development of the wings, it secretes alkaline fluid which moistened the cocoon and it made a hole from which emerges out as an adult. This is the life history of the Bombyx morai. अपेक्षा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। बॉम्बिक्स मोराई के जीवन चक्र की व्याख्या करते हुए वयस्क नर और मादा जब मैथुन की क्रिया में भाग लेते हैं तो ये अंडे निषेचित अंडे देते हैं। इन निषेचित अंडों में से परिपक्व कैटरपिलर बाहर निकलता है जो सिरवक्स और उदर में विभाजित होता है। उदर में 5 जोड़ी आभासी लेग पाए जाते हैं जो कुकुन के अंदर इसके सिर के द्वारा स्थापित होने वाले कुकुन के अंदर जब यह लिपटा होता है तो ये आभासी लेग तो विलुप्त हो जाते हैं और पंखों का परिवर्तन हो जाता है कुकुन में और फिर ये वापस वयस्क में जो है इसके रूप में बाहर निकल जाता है। यह बॉम्बिक्स मोराई की लाइफ साइकिल है। अपेक्षा है वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।